تاریخ کے پنوں میں بات درج ہے، آپ نے بھی کہیں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ پچھلے زمانے میں جب دو فوجیں آپس میں لڑتی تھی اور ایک فوج جیت جاتی تھی، دوسری فوج کی ہار ہو جاتی تھی، تو جیتنے والی فوج ہارنے والی فوج کے علاقے میں گھس جاتی تھی، لوٹ مار مچاتی تھی، حملہ کرتی تھی، شہریوں کے گھروں کو لوٹنے لگتی تھی اور جو کچھ مال و دولت ملتا تھا، پیسہ ملتا تھا، ہر ایک چیز کو لوٹ لیا جاتا تھا، پورا کا پورا علاقہ ڈیمولش کر دیا جاتا تھا، تباہ کر دیا جاتا تھا، مارکیٹ کو، بازاروں کو، شہروں کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا جاتا تھا اور فوج کو اوپر سے ہدایت ملتی تھی، اوپر سے پرمیشن ہوتی تھی کہ پورے شہر کو کھنڈر میں تبدیل کر دو۔ یہ پرانی باتیں ہیں، تاریخ کی باتیں ہیں، لیکن اس وقت یہی منظرنامہ ویسٹ بنگال میں نظر آ رہا ہے، یہی سین ویسٹ بنگال میں ہو رہا ہے کہ بی جے پی کے جتنے ورکرز ہیں وہ لگاتار پورے ویسٹ بنگال میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، غنڈہ گردی کر رہے ہیں، پورے علاقے میں بلڈوزر کو لے کر پہنچ گئے ہیں اور 2 دنوں سے کنٹینیو یہ غنڈہ گردی چل رہی ہے۔ اور اب جا کر کولکاتہ پولیس کو ہوش آیا ہے، اب آ کر کولکاتہ پولیس نے اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ بلڈوزر کے ذریعے کسی بھی طرح کی ریلی نہیں کی جا سکتی ہے، بلڈوزر کے ذریعے کسی شہر کو، کسی علاقے کو ڈیمولش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی ویسٹ بنگال میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے بی جے پی کی جیت کا اعلان کیا، اس کے بعد ہی پورا ویسٹ بنگال غنڈہ گردی میں تبدیل ہو گیا۔ پورے ویسٹ بنگال میں بی جے پی کے ورکر سڑکوں پر آ گئے اور توڑ پھوڑ کرنے لگے، غنڈہ گردی کرنے لگے، دفتروں کو آگ لگانے لگے، جگہ جگہ جے شری رام کے نعرے لگانے لگے۔ جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی جو دھجیاں ویسٹ بنگال میں اڑائی گئی ہے، تاریخ میں اور ہندوستان میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے۔ ابھی صرف ویسٹ بنگال کا رزلٹ نہیں آیا ہے، بلکہ ویسٹ بنگال کے ساتھ 5 راجیوں کا رزلٹ آیا ہے، اسم کا بھی رزلٹ آیا ہے، کیرل کا رزلٹ آیا ہے، تمل ناڈو کا رزلٹ آیا ہے، پڈوچیری کا رزلٹ آیا ہے۔ کہیں اس طرح کا کوئی جشن نہیں منایا جا رہا ہے۔ کیرل میں کانگریس کی سرکار بنی ہے، جیت ہوئی ہے۔ آپ نے ایک خبر نہیں سنی ہوگی کہ کانگریس کے ورکروں نے یا مسلم لیگ کے ورکروں نے کہیں پر جا کر کسی کے خلاف نعرہ لگایا ہو، کسی عورت کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، کسی پارٹی کے دفتر کو آگ لگا دیا ہو۔ تمل ناڈو میں پہلی مرتبہ ٹی وی کے کو جیت ملتی ہے، ایکٹر وجے کی شاندار فتح ہوتی ہے، وہ شخص اب چیف منسٹر بننے جا رہا ہے اور سب سے زیادہ اس کے ورکروں کو، اس کے چاہنے والوں کو جشن منانے کا حق حاصل ہے کہ اس نے 2 سال پہلے پارٹی بنائی اور اس کی پارٹی نے تمل ناڈو جیسے بڑے اسٹیٹ میں جیت کا پرچم لہرا دیا ہے۔ لیکن ٹی وی کے ورکر کہیں پر بھی کسی دفتر کو آگ نہیں لگا رہے ہیں، کسی پر اٹیک نہیں کر رہے ہیں، کسی کی جان نہیں لے رہے ہیں، نہ دوسرے ریاستوں میں ایسا ہو رہا ہے۔ یہ منظرنامہ صرف ویسٹ بنگال میں ہے اور اسم سے بھی کچھ خبریں ایسی آ رہی ہے۔ ویسٹ بنگال کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کو آپ دیکھیں گے، جانیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے ویسٹ بنگال میں۔ جیسے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور یہ ویڈیو بارامات کے علاقے کی ہے، جہاں ایک بہت بڑا پارک تھا اور اس پارک کا نام نواب سراج الدولہ سے منسوب تھا۔ اب اس پارک میں جا کر بی جے پی کے غنڈوں نے اس کا نام بدل دیا اور اس کا نام رکھ دیا شیواجی پارک۔ یہ بنگال کی تاریخ سے کھلواڑ ہے، بنگال کی جو ہسٹری ہے، جو تہذیب ہے، اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی، انگریزوں کو آنے سے روکا تھا، مرشد آباد کے علاقے میں ان کی حکومت تھی، ان کے نام سے وہ پارک تھا، لیکن بی جے پی کے لوگوں نے کسی فیصلہ کے بغیر سرکار بننے سے پہلے ہی اس کا نام بدل دیا۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور کانگریس کے ٹویٹر ہینڈل سے اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا ہے، جس میں بی جے پی کا ایک ورکر دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی کا مکھوٹا پہن کر آگے چل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں رسی ہے اور پیچھے ایک لیڈی کو اس رسی سے باندھ دیا گیا ہے اور وہ اس لیڈی کو گھسیٹ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، اور جو لیڈی ہے جس کو سفید رنگ کی ساری پہنائی گئی ہے، جس کو گھسیٹا جا رہا ہے، وہ دراصل ممتا بنرجی سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ ممتا بنرجی کو نریندر مودی گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں اور بی جے پی کے جو ورکرز ہیں وہ دونوں طرف سے چل رہے ہیں، جے شری رام کے نعرے لگا رہے ہیں، بی جے پی کی مہلائیں موجود ہے۔ آخر یہ کون سے ہندوستان کی تصویر ہے؟ وزیر اعظم نریندر مودی کی شبیہ کیا اس طرح پیش کی جائے گی کہ وہ ایک عورت کو، ایک مہیلا کو اس طرح گھسیٹ کر لے جائیں گے اور اس طرح مذاق اڑایا جائے گا؟ کولکاتہ شہر میں نیو مارکیٹ ہے، نیو مارکیٹ کی ویڈیو سامنے آئی ہے، کل سے لگاتار وہاں
जहाँ जहाँ टीएमसी का दफ्तर है उसको तोड़ा जा रहा है, टीएमसी के झंडे को उखाड़ कर फेंका जा रहा है, और जो दुकानें बनी हुई है उस मार्केट में, जो लोगों की शॉप है, जो लोगों के दफ्तर है, उन सबको बुलडोज़र से तोड़ा जा रहा है। बुलडोज़र के ज़रिए कार्रवाई की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। एक और वीडियो सामने आई है कि एक लेडी आगे जा रही है, उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी है, यानी ये भी ममता बनर्जी की एक तरह से तशबीह पेश की गई है, और पीछे से उसके पीछे के मकाम पर बांस को रखा गया है। आप स्क्रीन पर इस वीडियो को देख लीजिए। मैं बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि कैसे इसको बताया जा सकता है, किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करके मैं इस पूरे सीन को, इस पूरे मंजरनामा को बताऊं कि बीजेपी के वर्कर्स एक महिला के पीछे बांस लगाकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं, परेड निकाल रहे हैं, और इसको विक्ट्री परेड का नाम दिया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। क्या ये हिंदुस्तान है? क्या ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है? और किस ज़माने में लोग जी रहे हैं? और क्या इससे हिंदुस्तान की तारीफ़ होगी या हिंदुस्तान की बदनामी होगी? और हैरत की बात यह है कि बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी तरफ से एक भी जुमला सामने नहीं आया है। इन सब को ज़रा बराबर तंबीह नहीं की जा रही है कि जश्न के नाम पर महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, जश्न के नाम पर तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, जश्न के नाम पर आगजनी नहीं होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल का बहुत ही अहम तरीन इलाका है आसनसोल, और पूरे आसनसोल में जहाँ जहाँ टीएमसी का दफ्तर है उन सबको आग लगा दिया गया है। उसके अलावा मुख्तलिफ दुकानों को, मकानों को वहाँ तोड़ा गया है, डेमोलिश किया गया है। एक और वीडियो सामने आई है मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी की, आप इनको देखिए। मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी है और वेस्ट बंगाल में जमीयत उलमा हिंद के सदर भी हैं, ममता बनर्जी की हुकूमत में मिनिस्टर थे। ये अपना चुनाव हार गए, दोबारा नहीं जीत सके। जब ये काउंटिंग सेंटर से निकलते हैं तो इनके खिलाफ बीजेपी के वर्करों ने जय श्री राम का नारा लगाया, और जानबूझकर नारा लगाया, देखते हुए कि ये मौलाना हैं, दाढ़ी टोपी वाले हैं, और इनको चिढ़ाने का काम किया। सुनिए इस वीडियो को। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की वीडियो सामने आई है, जहां देखा जा रहा है कि बीजेपी के वर्कर्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं और वहां तलबा पर हमला किया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है, तलबा को मारा जाता है, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, विक्ट्री का, फतह का जश्न मनाया जाता है। और जो पुरानी तारीख रही है कि जीतने वाली फ़ौज हारने वाले इलाकों में जाकर पूरे शहर को ताराश कर देती है, तबाह कर देती है, खंडर में तब्दील कर देती है, वही सिचुएशन पूरे वेस्ट बंगाल की है। एक और वीडियो सामने आई है वेस्ट बंगाल की, जहां टीएमसी के वर्कर अपने दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और बीजेपी के वर्कर्स आते हैं। भगवा कपड़ा उन्होंने पहन रखा है, उनके हाथों में लाठी है, डंडा है, और उसके बाद टीएमसी के वर्करों पर हमला शुरू हो जाता है, लगातार उनको निशाना बनाया जाता है। एक और वीडियो सामने आ रही है जहां बीजेपी के वर्कर्स टीएमसी के दफ्तर में घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आग लगा देते हैं, और लगातार इस तरह की वीडियो सामने आ रही है, इस तरह की खबरें सामने आ रही है। पूरे वेस्ट बंगाल के ही माहौल है। कई जगह ये देखा जा रहा है कि अगर मुसलमान रास्ते से गुजर रहा है तो वहाँ पर जो हिंदू हैं वो मुसलमान को देखते ही जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि बीजेपी के जिम्मेदारों की तरफ से इस तरह के सेलिब्रेशन को, इस तरह की रैली को रोका नहीं जा रहा है। इस दौरान कोलकाता पुलिस कमिश्नर हैं अजय कुमार नंद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब ये कहा है कि
बुलडोज़र के साथ कोई रैली नहीं निकालने दी जाएगी और अगर किसी ने बुलडोज़र के साथ परेड निकाला, रैली निकाली तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हालांकि इस दौरान बुलडोज़र के ज़रिए कई इलाकों का नाम बदल दिया गया है, बुलडोज़र के ज़रिए कई शहरों में तबाही मचाई गई है, कई जगह दुकानों को तोड़ दिया गया है और लगातार बुलडोज़र के ज़रिए परेड निकाला जा रहा है। और अब पुलिस कमिश्नर की नींद टूटी है और उन्होंने कहा कि बुलडोज़र के ज़रिए किसी भी तरह की परेड निकालने की परमिशन नहीं दी जाएगी। उधर असम की एक वीडियो सामने आई है, ये वीडियो अभी की नहीं है, चुनावी कैंपेन के दौरान की है, लेकिन आप समझिए कि जहनीत किस तरह की है और किस तरह के मुद्दों पर चुनाव इस मरतबा लड़ाया गया। उस वीडियो में देखा जा रहा है जो दरअसल एक ड्रामा है या कह लीजिए एक रिकॉर्डेड वीडियो है, प्ले शो है। उसमें ये दिखाया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया के अफसरान मुसलमान के घरों को बुलडोज़र से तोड़ देते हैं और उस घर में मुस्लिम मर्द हैं, मुस्लिम औरतें हैं, बच्चे हैं और घर टूट जाने के बाद मुस्लिम फैमिली डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, चीखती है, पुकारती है, रोती है और बुलडोज़र के ज़रिए घर को तोड़ा जा रहा है। ये रियल में नहीं दिखाया गया बल्कि बाज़ाब्ता एक इस तरह का ड्रामा तैयार किया गया और चुनावी कैंपेन के दौरान उसको दिखाया जाता है और इस बुनियाद पर वोट मांगा गया है। यानी हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक तरह से मैसेज दिया असम के लोगों को कि अगर हमारी सरकार बन गई दोबारा तो हम मुसलमानों के घरों को बुलडोज़ कर देंगे, उनकी ज़मीनें हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। पिछले दिनों में यही असम में होता रहा है और अब कहा जा रहा है कि दोबारा से असम में यही होगा और यही स्क्रिप्ट अब वेस्ट बंगाल में दोहराई जाएगी। लगातार जश्न मनाया जा रहा है इस बात का कि अब वेस्ट बंगाल में यूपी का बुलडोज़र लाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ की हुकूमत का जो मॉडल है, सरकार चलाने का जो तरीक़ेकार है, वही तरीक़ेकार वेस्ट बंगाल में भी अपनाया जाएगा। एक और वीडियो सामने आई है फ़्लाइट की। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को कवर करने जो जर्नलिस्ट वहां पहुंचे थे, वो जब वेस्ट बंगाल से कोलकाता से लौट रहे थे तो फ़्लाइट में ही उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, मोदी की जीत को सेलिब्रेट किया। आप इस वीडियो को भी देखिए। जय श्री राम, 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 हर हर महादेव, जय मां काली, जय मां दुर्गा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुर्शिदाबाद में जियागंज का इलाका है, वहाँ लेनिन की मूर्ति लगी हुई थी, उसको तोड़ दिया गया है और पूरे वेस्ट बंगाल में इसी तरह की गुंडागर्दी है। जंगल राज में पूरा मगरिबी बंगाल तब्दील हो चुका है। एक और रिपोर्ट और वीडियो सामने आई है, लेकिन ये पहले से मुख्तलिफ है। दरअसल कहा जा रहा है कि कांग्रेस का दफ्तर था और टीएमसी ने उस दफ्तर पर कब्जा कर रखा था। अब बीजेपी के वेस्ट बंगाल में इक़्तिदार में आने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने टीएमसी से उस दफ्तर को आज़ाद करा लिया है। कांग्रेस की लीडर वहां पर पहुंचती है और दोबारा उसको कांग्रेस का दफ्तर बनाया गया है। टीएमसी के झंडों को हटाया गया है, कांग्रेस का झंडा वहां पर लगाया गया है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद अब कांग्रेस को भी वेस्ट बंगाल में राहत मिली है और उसके दफ्तर पर टीएमसी ने जो कब्जा कर लिया था उस कब्जे को हटा दिया गया है। वेस्ट बंगाल का इतिहास ये रहा है कि जब भी वहाँ कोई पार्टी चुनाव जीतती है तो वायलेंस होता है, तशद्दुद होता है। इससे पहले जब लेफ़्ट पार्टी की सरकार ख़त्म हुई थी और ममता बनर्जी सरकार में आई थी तो इसी तरह के वाक़यात पेश आए थे जहां लेफ़्ट पार्टियों के दफ्तरों को आग लगाया गया था। टीएमसी के वर्करों ने जगह जगह उस पर कब्ज़ा किया था, लेकिन मामला इतना बड़ा नहीं हुआ था, इस तरह का वायलेंस नहीं हुआ था, इस तरह का तशद्दुद नहीं हुआ था। पिछले साल भी कुछ इस तरह के वाक़यात सामने आए, लेकिन 2026 में जो कुछ हो रहा है पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। वायलेंस और तशद्दुद की तमाम लिमिट को इन सब वाक़यात ने क्रॉस कर दिया है और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि किस तरह ममता बनर्जी का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या एक महिला के साथ इस तरह करना सही है? बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप क्यों चुप है, खामोश है? उधर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने रिज़ाइन देने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि ये जो इलेक्शन है इसको मैं नहीं मानती हूँ, दोबारा चुनाव कराना होगा। 100 असेंबली हलकों के सीसीटीवी फुटेज को माना गया है जहाँ
घपला हुआ है, जहां करप्शन हुआ है, जहां रिजल्ट को बदला गया है। अभिषेक बनर्जी ने बाज़ाब्ता ये इल्ज़ाम लगाया है और पिछली वीडियो में मैंने पूरी तफसील बता रखी है कि कैसे वहां ममता बनर्जी और उसकी पार्टी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है वोट चोरी का। उधर अपोजिशन का एक बड़ा अलायंस बनने जा रहा है, इत्तेहाद बनने जा रहा है और इसीलिए वेस्ट बंगाल में फ़िलहाल बीजेपी के लिए सरकार बनाना आसान नहीं होगा। ममता बनर्जी ने जब इनकार कर दिया रिज़ाइन देने से तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि गवर्नर के पास पावर है और 7 मई तक ही इस सरकार की मुद्दत है। 7 मई के बाद खुद वेस्ट बंगाल के गवर्नर ममता बनर्जी को उनके ओहदा से डिसमिस कर सकते हैं और नई जीतने वाली पार्टी को वो मौका देंगे सरकार बनाने के लिए, अपना चीफ मिनिस्टर चुनने के लिए। इसलिए ममता बनर्जी के इनकार से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ सकता। अब गोदी मीडिया का जो शर्मनाक रवैया है वो ज़रा देखिए कि ममता बनर्जी ने जब रिज़ाइन देने से इनकार कर दिया तो कल से तमाम टीवी चैनलों पर तमाम जर्नलिस्ट ट्विटर पर आकर लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रहे हैं कि क्या ये जंगल राज है? एक महज़ब माशरे में ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप हार जाएं, आपकी हार का ऐलान हो जाए और उसके बावजूद आप कुर्सी से चिपके रहिए, कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दीजिए, रिज़ाइन ना करने के बारे में बोलिए। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? किस तरह जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही है? ये तमाम गोदी मीडिया की तरफ से नैरेटिव चलाया गया। लेकिन दूसरी तरफ उसी वेस्ट बंगाल में जब गुंडागर्दी हो रही है, पूरा का पूरा इलाका बुलडोज किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, वर्करों ने, कार्यकर्ताओं ने पूरे वेस्ट बंगाल में लूटमार शुरू कर रखा है, तो इस पर कहीं से एक आवाज़ नहीं उठ रही है, इसके खिलाफ नहीं बोला जा रहा है कि ये भी जंगल राज है, ये भी गुंडागर्दी है, डेमोक्रेसी और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। और जिस पार्टी के वर्कर्स कर रहे हैं, जिस पार्टी का झंडा लगा कर किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ बोलना ज़रूरी है, उन पार्टियों के रहनुमाओं को सामने आना ज़रूरी है। आखिर क्यों? इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर। मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को देखते रहिए, सुनते रहिए।